آج ہم نے پڑھنا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. ایک منٹ. اچھا جی. چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہمارا تیسرا چیپٹر تھا وہ تھا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یہاں ہم اس کی تھوڑی سی جو کورس آؤٹ لائن ہے یا ہمارا جو اس تھرڈ چیپٹر کا کنٹینٹ ہے ہم اسے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا اس میں ڈیفینیشن آف انٹیلیجنٹ ہے سب سے پہلے انٹیلیجنس. دوسرے نمبر پر ہے میئرمنٹ آف انٹیلیجنس. پھر ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ فرام انفینسی ٹو ایڈولیسنس. اس کے بعد ہے لرننگ اینڈ انٹلیکچوئل کریکٹرسٹکس آف لرنر اینڈ آرگنائزیشن آف ریلیونٹ ایکٹیویٹیز ان دا کلاس روم ایٹ دا فالوئنگ لیولس. پہلا لیول ہے ہمارا پری اسکول اینڈ کنڈر گارٹن اور دوسرا ہے ایلیمنٹری لیول. اچھا جب ہم انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہماری جو اسٹڈیز ہوتی ہیں یا ہم لوگ اگر کوئی کورس آؤٹ لائن میں کچھ کانسیپٹس پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ہی ڈیٹا اکٹھا کر کے نہیں پڑھایا جاتا بلکہ ان کانسیپٹس پر جو ہے پراپر تھیریز بنائی جاتی ہیں, اسٹڈیز کی جاتی ہیں, آرٹیکلس لکھے جاتے ہیں, سرچز کی جاتی ہیں, دین ہم ان کو تھیریز کو اپنے کریکولم میں یا کورس آؤٹ لائن میں ایڈ کرتے ہیں. اچھا تو ہم پڑھے ہیں کہ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ سرچز یا تھیریز intelligence is ability to solve problems, ability to learn, ability to solution of problem. بچے آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ اپنے کائنڈلی مائک آف رکھیں نا. اچھا جی. اچھا ہاں ہم کہہ رہے تھے کہ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے. انٹیلیجنس از ریکوگنائز پرابلم, سالو پرابلم اینڈ لرن پرابلم. یہ ہمارے کچھ تین ایسپیکٹ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کے اندر آتے ہیں. یعنی سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو لرن کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہے ایبلٹی ٹو ریکوگنائز پرابلم ہے. یعنی کسی چیز کو یا کسی اگر جگہ پہ کوئی پرابلم ہے ہمارا تو ہم اسے ریکوگنائز کرتے ہیں, پہچانتے ہیں کہ وہ آخر پرابلم کیا ہے یا کہاں سے آیا ہے یا اسے کس طرح سے سالو کرنا ہے. یہ ہمارا ایک تھوڑا سا اوور ویو تھا کہ انٹیلیجنس عام لفظوں میں ہم کسے کہتے ہیں. پھر ہم آپ یہاں اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوگنیشن کا لفظ یوز کیا گیا ہے. کوگنیشن کو انٹیلیجنس کے سینونیمسلی لفظ میں یوز کیا جاتا ہے. کوگنیشن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں is a study of thought process or activities of human mind which led to acquisition of new knowledge and skill. یعنی کوگنیشن ہمارا وہ والا پروسیس ہوتا ہے جو ایکوزٹ کرتا ہے نئے نالج کو اور نئی اسکلز کو. یعنی ہم اس کے تھرو کوگنیشن کے تھرو جو ہیں وہ نیا نالج سیکھتے ہیں, نئی اسکلز ایکوائر کرتے ہیں. اس کے اندر ہم کوگنیشن کے اندر آل ٹائپ آف مینٹل پروسیس جو ہے ہم اس کو شامل کرتے ہیں جس میں اٹینڈنگ ہے, تھنکنگ ہے, ویژولائزنگ ہے, امیجننگ ہے, کریٹنگ ہے یا پرابلم سالونگ ہے. اس کو ہم مختلف قسم کے نام دے دیتے ہیں. اس پروسیس کے اندر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں یا اپنی سینسز کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے پرابلم سالونگ کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کیا ہے. یعنی یہ تو تھا کوگنیشن کا کانسیپٹ کہ یہ سارا پروسیجر جو ہوتا ہے وہ کوگنیشن کے اندر ہوتا ہے. جب ہم انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں intelligence refers to the process of applying that thought or knowledge into real life. یعنی جو چیزیں ہم نے اپنی تھنکنگ سے, اپنی ویژولائزیشن سے, اپنی امیجنیشن سے, اپنی کریشن سے جو چیزیں یا جو پرابلم سالونگ کے پلانز ہم نے اپنے ذہن میں سوچے ہیں ان کو ریئل لائف میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. ان اپنے نالج کو یا اس تھاٹ کو ہم نے اپنے ریئل لائف پرابلمس کے ساتھ کس طرح سے میچ کرنا ہے اور کس طرح سے ان پرابلمس کو سالو کرنا ہے ہم نے. یہ ہمارا انٹیلیجنس ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ کوگنیشن اور انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ سملر ہیں. تھنگس جو ہیں وہ سینونیمسلی ہم کہتے ہیں کہ سینونیم ہے ایک دوسرے کا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کوگنیٹو ایبلٹیز ہوتی ہیں نا ان میں تھنکنگ اور پرابلم سالونگ شامل ہوتی ہے. اور
इंटेलिजेंस के साथ ये क्लोजली लिंक्ड होती हैं, ये सेम नहीं है। मैं आपको इस चीज़ को इलेबोरेट कर रही हूँ कि ये चीज़ें सेम नहीं हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के लिए सिनोनिम के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं। यानी कोग्निशन हमारे वो सारे नॉलेज या एक्टिविटीज़ या हमारा न्यू नॉलेज एंड स्किल्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम यूज़ करते हैं अपने रियल इन्वायरमेंट के अंदर। जब रियल इन्वायरमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसे यूज़ करते हैं तो वो हमारी इंटेलिजेंस में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि cognitive abilities can be trained and improved under certain conditions, whereas intelligence generally referred to a relatively fixed and measurable trait। यानी जो हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज होती हैं ये सर्टन कंडीशंस के अंदर ट्रेंड और इम्प्रूव होती रहती हैं, जबकि जो इंटेलिजेंस होती है ये फिक्स और मेजरेबल ट्रेट होती है हमारी। यानी हमने किसी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है या किसी अपने प्रॉब्लम को किस तरह फिक्स करना है, उसका सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस होती है। फिर हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। उन कंपोनेंट्स में वर्किंग मेमोरी है, यानी हम पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ, देन हम उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे उस चीज़ों को। इसके कंपोनेंट्स में पहले तो वर्किंग मेमोरी आती है, फिर विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग आती है, फ्लूइड रीजनिंग आती है, नॉलेज होता है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है। यानी हम इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट ये है कि हम वर्किंग मेमोरी होती है ये, कि हम उस इंटेलिजेंस को वर्किंग मेमोरी कैसे कह सकते हैं कि कंपोनेंट है कि हम अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। यानी हम अगर कोई काम करते हैं तो हम अपनी जहानत को, अपने दिमाग को थोड़ा लड़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम उसको यूज़ करते हैं अपनी इंटेलिजेंस को, ठीक है। इसी तरह ये विजुअल स्पेशल प्रोसेस है और फ्लूइड लर्निंग है या रीजनिंग है, नॉलेज है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ठीक हो गया। ये हमारे कुछ इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स हैं जिनको साथ मिलाकर हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, कि थ्योरीज क्या कहती हैं इंटेलिजेंस के बारे में। ये डिफरेंट जो हमारी रिसर्चेज हो चुकी हैं या आर्टिकल्स हैं वो इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होती है। सबसे पहले जो जनरली इंटेलिजेंस इज थॉट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल the ability to solve problems and adapt and learn from experiences, creativity and interpersonal skills। यानी जो इंटेलिजेंस होती है हमारी, हमारी डिफरेंट थॉट्स का कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे जैसे मिसाल दी गई है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको अडॉप्ट करना, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करना या क्रिएटिविटी होना और इंटरपर्सनल स्किल्स होना, ठीक है। ये सब चीजें जब शामिल होती हैं तो उसे हम कह देते हैं कि ये इंटेलिजेंस है हमारा। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना हमारा। फिर हम कहते हैं कि ओवरऑल जब हम जनरल बात करते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होती है तो हम कह देते हैं इट इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग, यानी द कैपेसिटी टू एक्वायर न्यू नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। हम ये कह देते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग शामिल होती है, यानी हम किसी चीज़ का रीज़न देते हैं या किसी न्यू नॉलेज को एक्वायर करने की कैपेसिटी होती है हमारे अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी होती है कि किस तरह हमने इन चीज़ों को एक्वायर करना है, उस एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस रेफर्स टू एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट आइडियाज टू फॉर्म समथिंग नोवेल बाय थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। यानी यहाँ पे उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो इस एक एबिलिटी है जो रेफर करती है डिफरेंट आइडियाज को, डिफरेंट नोवेल थिंग्स से, यानी कुछ नई आइडियाज से या नोवेल थिंकिंग से या समथिंग न्यू से हम जो है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जाके। यानी हम अपने आइडियाज को, क्रिएटिविटी को यूज करते हुए, इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। ये हमारे कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे कि इंटेलिजेंस क्या होती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर कुछ टाइप्स नजर आ रहे होंगे इंटेलिजेंस के ना।
कि इंटेलिजेंस की कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, मैं सबसे पहले आप लोगों को वन बाय वन इनके नाम बताती हूँ, देन उनको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इंटेलिजेंस की टाइप में है लिंग्विस्टिक, सेकंड है म्यूजिकल, थर्ड है लॉजिकल मैथमेटिक्स, स्पेशियल, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। जब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक की, तो हम कहते हैं एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली, यानी हम किसी लैंग्वेज को इस तरह से यूज करते हैं, इसे हम लिंग्विस्टिक कह देते हैं। या डिफरेंट कि हम ये कहते हैं कि हमारी बात से या हमारे कहने से मतलब क्या है। फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सप्रेस योर थॉट्स या एक्सप्रेस योर मीन्स, कि हम अपने जो स्पेसिफिक कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं या हमारी एक्सप्रेशन होते हैं, हम उनको एक मतलब के साथ उसको जाहिर करते हैं, एक जुबान देते हैं, उसे हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कह देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि म्यूजिकल थॉट्स होती हैं, यानी हम इसमें ये कह देते हैं कि एबिलिटी टू परसीव, आइडेंटिफाई, ट्रांसफॉर्म एंड एक्सप्रेस म्यूजिकल फॉर्म्स, कि हम जो हैं वो इसमें बता इलेबोरेट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स को, अपनी को हम बताते हैं कि ये जो है वो सॉरो म्यूजिक है, ये सैड है, ये हैप्पीएस्ट है। मतलब डिफरेंट हम डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट मोमेंट्स के दरमियान। ये इंटेलिजेंस है हमारी एक टाइप ऑफ। उसके बाद हम कहते हैं कि लॉजिकल मैथमेटिक्स क्या होता है, कि एबिलिटी टू यूज नंबर्स इफेक्टिवली, कि हमने जो हमारे नंबर्स होते हैं, हमारे जो मैथमेटिकल नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 है, इनको हमने किस तरह से इफेक्टिवली यूज करना है, या अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कह देते हैं हम इसे, या जो हमारे बेसिक अरिथमेटिक होता है इसको हम वो कह देते हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस में शामिल होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कि एबिलिटी टू इमेजिन ड्राइंग्स इन 2 or more डायमेंशंस एंड टू अंडरस्टैंड स्पेस। इसमें हम ये कह देते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हमारा विजुअलाइजेशन होती है वर्ड की, हम उसे लाइक 3D करके देखते हैं, यानी हर एस्पेक्ट से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हम देखते हुए किसी चीज का कंक्लूड करते हैं किसी को, कि हाँ भाई ये चीज, हर डायमेंशन को हम उसकी को देखते हैं कि ये चीज इस तरह से भी हो सकती है। उसके बाद आती है बॉडी किनेस्थेटिक। इसमें ये आ जाती है कोऑर्डिनेशन ऑफ योर माइंड विद योर बॉडी। ठीक है, कि हमने अपनी माइंड को और बॉडी की कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो एक्सप्रेस करना है अपने फीलिंग्स को या एक्सप्रेशंस को। यानी अगर हम सैड हैं, वीपिंग हैं तो हम आंसू बहाते हैं, हैप्पी हैं तो हम हुर्रा हा हा ऐसे कह देते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ बॉडी इंप्रेशंस होते हैं, ये एक्सप्रेशंस होते हैं, जिससे हम खुद की जो फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। ये भी एक इंटेलिजेंस की टाइप है। देन हम बात करते हैं इंटरपर्सनल की, यानी एबिलिटी टू इंटरप्रेट द मेंटल स्टेट, फीलिंग्स और इमोशंस। हम ये कह देते हैं कि इंटरपर्सनल में हम अपनी फीलिंग्स को किस तरह से या पीपल के साथ अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करनी है, ये चीज़ें शामिल होती हैं। हमारे इमोशंस शामिल होते हैं, हमारे मेंटल स्टेट होते हैं, हमें पता होता है कि कहाँ पर हमने कौन सी फीलिंग को जाहिर करना है। हमारी हैप्पी है, सैड है, सॉरो है, ये सारी फीलिंग्स होती है ना हमारी। देन हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल की। इंट्रापर्सनल क्या होती है, कि अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। ठीक है, हमने अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। एबिलिटी टू फॉर्म प्रिसाइज एंड ट्रू मॉडल ऑफ वन सेल्फ, यानी खुद को हमने जज करना है, कि हम अंडरस्टैंड करना है योर सेल्फ, यानी अपने आप को अंडरस्टैंड करना है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अभी, या हमें कौन सी चीज़ों में लैक है, हमारा जो कमी है किस चीज़ों में, हमने कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स लानी है। उसके बाद होता है कि नेचुरलिस्टिक, जो हमारी एक टाइप होती है इसकी इंटेलिजेंस की। ठीक है, इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं लिविंग थिंग्स को और नेचर को रीड करते हैं। हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं नेचर के अकॉर्डिंग हम खुद को, कि
कौन सा माहौल है, कहाँ जाना है, क्या करना है। जैसे हमारा एक आम सी मिसाल अगर मैं दूं, तो जैसे जैसे हमारा सीजन चेंज होता है, अगर विंटर है, समर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी इंटेलिजेंस है, जहानत है ना हमारी, कि हमने अगर कोई आप लोगों ने देखा फसल होती है, फसलों के कुछ मौसम होते हैं। अगर हमारी फसलें खरीफ है तो उसका मौसम है, फसलें रबी है तो उसका अलग मौसम है। यानी हमने डिवाइड कर दिया हुआ है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिटेंड करते हैं, उसकी अंडरस्टैंड करते हैं अपने लिविंग थिंग्स को, और नेचर को रीड करते हैं कि किस तरह से हम उस इन्वायरमेंट में फिट हो सकते हैं, या किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं उस जगह में। तो ये हमारी हो गई इंटेलिजेंस की टाइप्स। उसके बाद इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हमारे कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, टेस्ट दो तरह से होते हैं, एक तो होता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा होता है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में जो दो चीजें होती हैं, जब हम इंडिविजुअल का टेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें एक तो वर्बल टेस्ट आएगा, यानी उसकी जो स्पीकिंग पावर है हम उसको टेस्ट करते हैं, या उसकी बोलने की जो पावर है। दूसरा होता है परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी अ टिपिकल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट, यानी जिसमें हम ये कह देते हैं कि हम उनसे कोई परफॉर्मेंस करवा कर देखते हैं इंडिविजुअल टेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी इंडिविजुअल के बारे में, या किसी पर्सन के बारे में, या किसी पार्टिसिपेंट के बारे में सुनते हैं कि उसका बिहेवियर जो है वो बहुत बुरा है, ठीक है, हम पहले जब रिसर्च करेंगे उस इंडिविजुअल पर, क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि आया वो इंडिविजुअल जो है उसने मेरे साथ भी वही रवैये में बात की। ठीक है, हम उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होगा कि हम वर्बल में हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, वो किस तरह से बोल रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होगा कि हम उनसे बातचीत करके, परफॉर्म करके हम उनको देखेंगे, जज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आया ये वाकई में ऐसा है, या रिजल्ट्स वाकई यही कह रहे हैं कि ये मुझसे ऐसा बात करता है, कोई स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस हुआ होगा, या इनकी हैबिट है इस तरह से बात करना। तो हमें कुछ इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, कुछ ग्रुप टेस्ट होते हैं, जिसको हम अपनी थ्रू ऑब्जर्वेशन या उनकी पार्टिसिपेशन के थ्रू हम जज करते हैं। इसी तरह ग्रुप टेस्ट के अंदर भी कुछ वर्बल टेस्ट होते हैं और कुछ नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपको जैसे मैंने पहले डिफाइन किया था कि हमारे जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनमें जो डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं वैसे तो इंटेलिजेंस के, लेकिन मोस्ट कॉमन टेस्ट जो यूज होते हैं वो दो हैं हमारे। एक तो एल्फ्रेड बिने का है और दूसरा रेसलर का है। मैं आगे आपको उसका टेबल भी दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जो एल्फ्रेड बिने का टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला मैंने आपको पहले पढ़ाया था, थोड़ा गो थ्रू हमने इस चीज को किया हुआ है कि जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है इज इक्वल टू मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। यानी इस फार्मूला के थ्रू जो है हम किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की। कुछ ग्रुप्स कुछ टेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए होते हैं, कुछ जो होते हैं स्पेसिफिकली ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करने के लिए होते हैं। जो यहाँ ग्रुप को मेजर करने के लिए जो टेस्ट होते हैं उसकी मिसाल मैंने यहाँ दो टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं, लॉर्ड्स थॉर्नडाइक इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ऑड्रिस लेनन स्कूल एबिलिटी टेस्ट। ये दो टेस्ट हैं जो हम ग्रुप इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, फर्दर यहाँ पे ऐसा है कि जब हमने किसी इंडिविजुअल की या पार्टिसिपेंट की इंटेलिजेंस को मेजर करना होता है तो यहाँ पे दो टेस्ट हैं हमारे पास। एक तो वेस्लर का टेस्ट है और दूसरा स्टैनफोर्ड बिने का टेस्ट है। दो टेस्ट हैं। थ्योरीज में इस तरह होता है कि पहले अगर कोई हमारे पास नई थ्योरी आई है उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उस थ्योरी को अगर हम किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करना चाहें
टू मर्ज हो सके, ठीक है, या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम कुछ एडिशन करना चाहें तो हो सके। जो वेस्लर थे उन्होंने सबसे पहले आईक्यू टेस्ट की जो क्लासिफिकेशन थी वो दी हमें। उनके अकॉर्डिंग जो थी आईक्यू की रेंज 130 एंड अबव से लेके 69 एंड बिलो तक थी, यानी 130 एंड अबव में जो शामिल थे वो वेरी सुपेरियर थे, और जो 69 एंड बिलो तक जाते हैं तो वो एक्सट्रीम या लो आ जाते हैं, या मोरन हम जिसे कह देते हैं, वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये जब स्केल दिया गया या आईक्यू की रेंज दी गई, इन आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट को जब क्लासिफाई किया गया, उसके बाद स्टैनफोर्ड बिने ने इस थ्योरी के पेश नज़र उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट, एक अपना चार्ट दिया कि आईक्यू का रेंज ये भी हो सकता है। यानी जो वेस्टर का स्केल था उसके अकॉर्डिंग आईक्यू की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें 130 एंड अबव तक था। जो स्टैनफोर्ड बिने था उन्होंने इस चीज़ को इम्प्रूव किया और उन्होंने अपना एक आईक्यू का रेंज दिया, आईक्यू की क्लासिफिकेशन दी कि 145 से 160 तक होती है आईक्यू की रेंज, और ये जाती है 40 से 54 तक। और इन्होंने आईक्यू को क्लासिफाई किया इसी तरह से जैसे रेसलर ने किया था, यानी इन्होंने कह दिया कि जो 145 से 160 तक हैं वो वेरी गिफ्टेड और हाईली एडवांस हैं। जिस तरह अगर मैं आपको एक आम मिसाल दूं, जो हम सब जानते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने एटॉमिक बम बनाया था, उनका आईक्यू इतना है, ठीक है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि ग्रेजुअली ये जाते हैं प्रोसीजर में कि गिफ्टेड और वेरी एडवांस हो जाते हैं, सुपीरियर हो जाते हैं, हाई एवरेज हैं, लो एवरेज हैं, बॉर्डर लाइन, इम्पेयर्ड और डिलेड हैं, मिडली इम्पेयर्ड और डिलेड हैं, मॉडरेटली इम्पेयर्ड और डिलेड हैं, और नल हो जाता है आखिर में। उसके बाद हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए जो हमारे कुछ सेवरल टेस्ट होते हैं, जो आपको मैंने दो डिस्कस कर लिए, वो यही है कि एक तो एल्बर्ट बिने का है और दूसरा रेसलर का है, जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज को नैरो डाउन करके, नैरो रेंज करके हम जज कर लेते हैं कि फला इंडिविजुअल है या हमारा जो सैंपल है उसकी इंटेलिजेंस कितनी है। तो ये दो मेन टेस्ट हैं जो हमारे कॉमनली यूज होते हैं, स्टैनफोर्ड बिने का टेस्ट और वेस्लर स्केल जो है, ये दो हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो मेजरमेंट के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस किस तरह से होती है, कि इंटेलेक्चुअली जो बच्चा है, इंडिविजुअल है, जो हमारा एक सैंपल है, वो किस तरह से डेवलप करता है इन स्टेजेस के दरमियान में। तो यहाँ पर हम दो थ्योरिस्ट को पढ़ेंगे। पहली है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और दूसरी है हमारी वाइगोस्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल, ठीक है, डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक जो पियाजे की थ्योरी है वो क्या कहती है। जो पियाजे की थ्योरी है वो एम्फसिस करती है कॉग्निशन पर रेदर देन प्रोडक्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटीज या इंटेलिजेंस। वो कहते हैं कि जो कॉग्निशन होती है ना, वो उस पर ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटीज होती है, यानी हम जो अपने प्लान्स बनाते हैं उनको ही इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंटेलिजेंस बनती है ना। तो वो फोकस करते हैं मेनली कोग्निशन पर, कि कोग्निशन को किस तरह से हम इस लेवल पे डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पियाजे के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कोग्निशन को डेवलप करने की 4 स्टेजेस बताए हुए हैं। सबसे पहले जो आती है हमारी स्टेज वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये इंटेलिजेंस की स्टेजेस हैं जो जीन पियाजे ने हमें दी। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, चौथी है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो पहली स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज,
इससे हम ये कह देते हैं कि इसमें बर्थ से 2 ईयर तक का जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, वो आता है। इसमें पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू 5 सेंसेस होती है, यानी टेस्ट, टच, हियर, लिसन एंड थिंक। ये उसकी 5 सेंसेस होती हैं जिसमें वो उन सेंसेस के थ्रू वो थिंकिंग करता है अपनी। इसके अलावा इसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो अपने रिफ्लेक्स को कोऑर्डिनेट करता है, या अनकोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेशन होती है नेक्स्ट 4 मंथ में, यानी बर्थ से लेके उसके बाद। इसमें क्या करता है कि जब 8 मंथ का ड्यूरेशन आता है तो तब इन्फेंट जो है वो रिएक्शन के काबिल हो जाता है, या उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज इतनी डेवलप हो जाती हैं कि वो रिएक्ट कर सके। ठीक हो गया। इस लेवल पर सेंसरी मोटर स्टेज पर बच्चा जो है या इन्फेंट जो है वो रिएक्ट करता है। या जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं जिन घरों में, आप लोग अगर ऑब्जर्व करें तो बच्चा जो है जब उसकी मदर आती हैं या उसके फादर आते हैं, वो अपनी सेंसेस के थ्रू उस चीज को फील करता है, उस इमोशंस को फील करता है, वो अपने पेरेंट्स के लम्स को महसूस करता है और फौरन से उसमें एक्साइटमेंट होती है, वो खुशी से हाथ पांव मारता है, यानी वो रिएक्ट करता है। इन्फेंट इज एबल टू रिएक्ट। इस स्टेज पर जो बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो इस लेवल तक होती है कि वो बच्चा जो इन्फेंट है हमारा, वो रिएक्शन के काबिल होता है, यानी वो अपनी एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को थ्रू रिएक्शन। दूसरी स्टेज जो हमारी होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। इट बिगिंस अराउंड एज 2 अनटिल अप्रोक्सीमेटली एज 7 तक की जाती है, ये वाली स्टेज जो होती है। ठीक है। इसमें बच्चा जो है वो बोलना शुरू कर देता है और इस स्टेज के दरमियान बच्चा सिंबॉलिक लर्निंग सीखता है, यानी बिगिन टू इंगेज इन सिंबॉलिक प्ले एंड टू लर्न टू मैनिपुलेट सिंबल्स। यानी एक तो वो सिंबॉलिक लर्निंग सीखता है या सिंबॉलिक प्ले करता है, और दूसरा सिंबल्स को मैनिपुलेट करता है। अच्छा, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी इसके अंदर इन्होंने जो जीन पियाजे थे हमारे थ्योरिस्ट जो थे, इन्होंने इस एज ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला जो था वो था प्री कंसेप्चुअल और दूसरा था इनिशिएटिव फेज। जो प्री कंसेप्चुअल था उसमें 2 से 4 साल की उम्र तक का बच्चा जो है वो शामिल किया उन्होंने। इसमें इस स्टेज में प्री ऑपरेशनल के इस सब ग्रुप की पहली स्टेज में उन्होंने कहा कि बच्चा जो है या इन्फेंट जो है वो एगोसेंट्रिक नेचर का होता है, यानी वो खुद में ही मगन रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2 साल से 4 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, वो अक्सर अपने खिलौनों के साथ बैठकर वो खुद ही से ही खेल रहे होते हैं, चीजों को बना रहे हैं, ब्लॉक्स को बना रहे हैं, बिखेर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी वो खुद में ही मगन रहते हैं। देन हमारी इनिशिएटिव स्टेज या फेज होती है। इसमें इंट्यूटिव जो फेज होती है हमारी, ये 4 से 7 ईयर तक की होती है। इस स्टेज को उन्होंने कहा कि ये इमेजिनेटिव स्टेज होती है, नॉट लॉजिकल थिंकिंग, यानी इसमें बच्चा जो है वो चीजों को बस इमेजिन करता है, बल्कि उसमें इस स्टेज में उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई होती, जिससे हम अगर डेवलपमेंट के पीरियड्स में जिसको हमने चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टेज पढ़ा था, ठीक है, ये वो वाली स्टेज आ गई है हमारी। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारी अगली स्टेज होती है वो होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर हम ये कह देते हैं कि इस स्टेज पर बच्चा जो है वो समझने लग जाता है कि अगर हमारी शेप बदली है तो इसकी मिकदार भी बदलेगी। ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है ये होती है 12 to 15 ईयर की स्टेज। ठीक हो गया। इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है उसमें, या जो एडोलिसेंट होता है या अर्ली एडल्टहुड की ये स्टेज होती है, इसमें बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट ले लेता है कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट जो चीजें होती हैं उनका कॉन्सेप्ट ले लेता है।
کہ فلاں چیز جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ہے اور فلاں کنکریٹ ہے، اسے ڈفرینشیٹ کرنا آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کنکریٹ آپریشنل اسٹیج سمجھ آ گیا نا آپ لوگوں کو، کہ بچہ جو ہے وہ اپنے کوگنیٹو ایڈوانسمنٹ کر لیتا ہے اسٹیج کے درمیان. اور جب ہم فارمل آپریشن کی بات کرتے ہیں تو بچہ جو ہے اس اسٹیج کے اندر ایبسٹریکٹ اور سسٹمیٹک تھنکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اراؤنڈ ایج 11 تک یا 15 سال کی عمر تک. جو بچہ ہے وہ چیزوں میں فرق کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایبسٹریکٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں، کنکریٹ کیا ہوتی ہیں، یعنی وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے چیزوں کے درمیان. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ وائگوسکی کی تھیوری کیا کہتی ہے. وائگوسکی سوشیو کلچرل تھیوری کیا کہتی ہے. یہ دونوں تھیریز جو ہیں بچے کی کوگنیشن کو ڈیولپ کس طرح سے کرتے ہیں اس پہ فوکس کرتی ہیں. ٹھیک ہے. پیاجے کی تھیوری میں انہوں نے 4 سٹیجز بتائیں کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی 4 سٹیجز ہیں، جبکہ ویگوسکی نے اس کے اندر ڈیفائن کیا ہے کہ جو پیاجے کے اکارڈنگ تو یہ تھا نا کہ بچہ سمبولک لرننگ کرتا ہے یا وہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے اور کانسیپٹ لے لیتا ہے ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ چیزوں کا. اور ویگوسکی نے کہا کہ جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ان کی سوشل انٹریکشنز ہوتے ہیں، کلچرل ٹولز ہوتے ہیں، جس کے اندر اس کی لینگویج آ جاتی ہے، اس کی انسٹرکشنز آ جاتی ہیں، اس کے پیئرز آ جاتے ہیں، گروپ فیلوز ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ جو اس کی ہم عمر بچے ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ انٹریکشن کی صورت میں جو انفلوئنس ہوتا ہے بچے کی کوگنیشن پر، یا اس کی کوگنیشن جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی ہے یا انہینس ہوتی ہے، اس پر انہوں نے بات کی کہ یہ سارے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو بچے کی کوگنیشن کو انہینس کرتے ہیں، بلڈ کرتے ہیں، ایڈوانس کرتے ہیں. یعنی جب بچہ obviously جب بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے گا وہ کچھ نئے لفظ سیکھے گا، کچھ نئی ایکٹیویٹیز سیکھے گا، کچھ نئے پلے سیکھے گا، کچھ نئے گیمز سیکھے گا دوسرے بچوں سے. اٹ مینس کہ اس لیے انہوں نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو تھی اس کو اس کی بیس بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ سوشیو کلچرل تھیوری اس وجہ سے ہے کہ کوگنیشن کو ڈیولپ کرنے کے اندر ہمارے انوائرمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی کا ہاتھ ہے، ہمارا جو دوسرے پیئرز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، دوسرے انڈیویجولز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، بچے کی وہ کوگنیشن ڈیولپمنٹ میں بہت اہم پارٹ پلے کرتا ہے اپنا. اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ کچھ کلچرل انفلوئنسز ہوتے ہیں جو اس کی بچے کی ڈیولپمنٹ کو ایڈوانس کرتے ہیں، جس میں لینگویج ہو گئی، انسٹرکشنز ہو گئیں، یا سوشل انٹریکشن ہو گیا. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس سے بچہ کچھ نہ کچھ لرن کرتا ہے. اس کے بعد ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آرگنائزیشن آف ریلیونٹ ایکٹیویٹیز ان دا کلاس روم ایٹ دا فالوئنگ لیولس. کون کون سے وہ لیولز ہیں جس پر ہم نے ان کو کرنا ہے. پہلے تو ہمارا ہوتا ہے پری اسکول اور کنڈر گارڈن لیول. یعنی آپ لوگ اس چیز سے تو واقف ہوں گے کہ پری اسکول ہمارا سب سے بیسک جو ہے وہ مین سب سے فرسٹ والا سٹیپ ہوتا ہے جہاں بچہ اپنی لرننگ شروع کرتا ہے. یعنی اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں جس میں بچہ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں بچہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. ان سب ایکٹیویٹیز کا مقصد کیا ہے کہ صرف اس کی انٹیلیجنس کو یا اس کی کوگنیشن کو انہینس کرنے کے لیے ہم یہ پری اسکول اور کنڈر گارڈن کی سٹیج کو رکھتے ہیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ باقی بچوں کے ساتھ انگیج ہو کے ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر کے یہ ساری چیزیں سیکھ سکے. بلکہ یہ ساری چیزیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ساری جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اس کی کوگنیشن کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہم غلط نہیں ہوں گے، یا تھیریز جو ہیں وہ اس چیز پہ غلط نہیں ہوں گی. اوبیسلی جب بچہ جو ہے مختلف ایکٹ کرتا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز کرتا ہے، پارٹیسپیٹ کرتا ہے، تو وہ نئی تھنکنگ کرتا ہے، نئے آئیڈیاز آتے ہیں اس کے پاس. کہ اگر جیسے چھوٹے بچوں کی ہم بات کریں نا پری اسکول یا کنڈر گارڈن کی، تو ہم ایک عام مثال یہ دے سکتے ہیں کہ آبجیکٹ پلے کرتا ہے بچہ اس اسٹیج پہ، یعنی پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے، سوشل پلے کرتا ہے. آبجیکٹ پلے کس طرح سے ہوا کہ بلڈنگ آبجیکٹ ود بلاکس، یعنی بچوں کے آپ لوگوں نے بلاکس دیکھے ہوں گے، وہ کلرفل ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں نا. تو پری اسکول لیول پہ بچے کی کوگنیشن اس طرح سے ہم انہینس کرتے ہیں کہ
اسے یہی لگتا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے، وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، وہ صرف انجوائے کر رہا ہے. ایک فن لرننگ ہوتی ہے نا یہ والی، کہ بچہ کھیل میں، ہنسی کھیل میں وہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، جو اس کے ریئل لائف ایونٹس ہوتے ہیں. تو بچے کو جب بلاکس یا کسی آبجیکٹ پلے کرتا ہے تو سامنے ہم اس کی ایک بک ہوتی ہے جو کیٹلاگ ہوتی ہے، میں بچے کے بلاکس کی بلاک سے ٹرین بن سکتی ہے، کوئی ہم گھر بنا سکتے ہیں. مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا جن سے بچہ سیکھتا ہے یا رول پلے کرتا ہے کہ ہاں بھائی میں یہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. اس کی کوگنیشن انہینس ہوتی ہے، کہ ڈیولپ ہوتی ہیں چیزیں اس کی، کہ اس بلاکس کے ساتھ میں صرف ایک چیز کو نہیں بنا سکتا، میں کئی چیزیں بنا سکتا ہوں. یعنی اس کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہی ہے نا، وہ تھنکنگ کر رہا ہے ہر طرح سے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ رول پلے کرتا ہے کس طرح سے، کہ obviously جب ایکٹیویٹیز کرتے ہیں بچے تو ٹیچر جو ہیں وہ ہر بچے کو ساتھ انگیج رکھتی ہیں، کہ سب بچے جو ہیں، کوئی بچہ ہے اس سے وہ کام دے دیں گی کہ آپ ان آبجیکٹس کے ساتھ کار بلڈ کرو، اپنا گھر بلڈ کرو، اپنی ٹرین بلڈ کرو یا ٹریک بلڈ کرو. مطلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے ایکٹ کروائے جاتے ہیں بچوں سے. اس کے بعد ہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یعنی بچوں کو ہم ان کی کوگنیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہینڈز آن ایکٹیویٹی کرواتے ہیں، جس میں بچہ جو ہے وہ خود پارٹیسپیٹ کرتا ہے، وہ ہر طرح کی لرننگ کرتا ہے. انٹریکشن دوسروں سے ہونے کے بعد اس کی لرننگ ہوتی ہے یہ اسٹیج پر. اس طرح اس کی انٹیلیجنس انہینس ہوتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ساتھ میں سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے اس کو اس طرح سے جوڑا تو یہ گاڑی بن گئی، اس طرح سے جوڑا تو یہ جہاز بن گیا، اس طرح سے جوڑا تو یہ گھر بن گئی. یعنی ان کی جو اسکلز ہیں، جو ان کی تھنکنگ پاور ہے وہ بلڈ ہو رہی ہے، ایڈوانس ہو رہی ہے. کوگنیٹیو ان کی جو تھنکنگ ہے وہ براڈ ہو رہی ہے. اسی طرح جب ہم ایلیمنٹری لیول کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایلیمنٹری لیول پہ کوگنیشن جو ہے وہ ریپڈلی وہ جو ہوتی ہے ان کی کوگنیشن ڈیولپ ہوتی ہے اسٹیج پہ. یعنی بچے اس عمر میں جو بچے کی لرننگ ہوتی ہے وہ ایڈوانس ہوتی ہے. وہ یعنی ہر چیز کو، وہ ہر پوائنٹ کو وہ پک کرتا ہے، وہ ہر چھوٹی سی چیز کو آبزرو کرتا ہے، اس کو سوچتا ہے، بلکہ پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس لیول پر یا اس اسٹیج پر جو بچے کی لرننگ ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی ایکسپیریمنٹ شامل کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، یا بچوں کو انگیج کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں ڈسکوری لرننگ کے لیے، کہ اگر آپ اس چیز کو ایسے کرو گے تو پھر کیا ہوگا. یا بچہ سوچتا ہے کہ اگر میں ان بلاکس سے یا ان بکس کو دیکھ کر میں یہ چیز بناؤں گا تو اس کے علاوہ کیا بن سکے گا نا. تو یہ ساری اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، انکریج ہم کرتے ہیں نا اس کو، وہ انتھوزسٹکلی وہ ان کو پلے کرتا ہے، ان ساری ایکٹیویٹیز کو ایک فن کی طرح. اس کی لرننگ چل رہی ہوتی ہے، اس کی کوگنیشن انہینس ہو رہی ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو آپس میں پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں، ان کا کوئی ایکٹ کرواتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے اگر ہمیں بچپن والی ہماری پوئمز یاد ہوں تو ہم بچوں سے ایکٹ کرواتے ہیں. جیسے وہ ہماری ایک پوائم تھی ہیڈ اینڈ شولڈر نیز اینڈ ٹوز، اور ایک تھا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. یعنی یہ کچھ گیمز تھے ہمارے یا کچھ پوئمز تھے ہمارے جن پہ ہم بچوں کو ایکٹ کرواتے تھے. یعنی ایک بچے کو سامنے فار ایگزامپل ہم نے کھڑا کر دیا، وہ بچہ جو ہے اپنی سینسز کے تھرو اپنی کوگنیشن کو انہینس کرتا ہے. اگر ہم بچے کو ویسے کہیں کہ آپ باڈی پارٹس جو ہیں باڈی پارٹس یاد کرو تو وہ بچہ جو ہے اپنے باڈی کے پارٹس کو یاد نہیں کر پائے گا. لیکن اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ سامنے کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک حصے کو ٹچ کرو، اس کا نام لو، تو بچہ وہ ہے اس ایکٹیویٹی کو ایک فن کی طرح سے سیکھے گا، یہ کرے گا، ایکٹ کرے گا اس پر. جیسے ہم بچے کو سامنے کے کلاس روم کے سامنے ایک ماڈل کی طرح کھڑا کر دیں، ہم کہتے ہیں کہ ہیڈ اینڈ شولڈر، یعنی بچہ پہلے اپنے سر پہ ہاتھ رکھے گا، پھر شولڈر پہ ہاتھ رکھے گا، پھر ہم کہیں گے نیز اینڈ ٹوز، تو بچہ اپنے گھٹنوں پہ اور ٹوز پہ ہاتھ رکھے گا. یعنی اس ایکٹیویٹی کے ساتھ سارے بچے جو ہیں وہ ان کی کوگنیشن ڈیولپ ہو رہی ہے. یعنی انہیں باڈی پارٹس کے نام یاد ہو رہے ہیں اور ایک پوائنٹ کی طرح اس چیز کو پڑھ رہے ہیں، ایک فن کی طرح پڑھ رہے ہیں. یعنی انگیج ہیں وہ آپس میں سب بچے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی پوائمز ہوتی ہیں، یا جیسے بابا بابا بلیک شیپ ہیوی اینی وول،
है ना, बहुत सारी गेम्स होती हैं, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर बट यू आर, मतलब ये सारी चीजें कि बच्चा उन चीजों को लर्न करता है, थिंक करता है कि किस तरह की इमेजिनेशन करता है कि वो किस तरह की चीजें होंगी, या वो चीजों को टच करके जस्टिफाई करता है अपने आंसर्स को थ्रू एक्शन। ठीक है, इसी तरह हम बच्चे को रोल प्ले से या उनकी एक्टिविटी से, सिंपल एक्ट करवा के उनसे हम ये सारी चीजें करवाते हैं कि हाँ भाई बच्चे की ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, बच्चा इसमें फुली इंगेज है, पार्टिसिपेटेड है, और उसकी कोग्निशन जो है वो इनहेंस हो रही है। चलें जी, आज हमारा लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन अब मैं सबसे पहले जो सारे ये कॉन्सेप्ट हम एक दफा डिफाइन कर देती हूँ, ताकि जो बच्चे लेट कमर थे या जो नहीं सुन पाए वो फिर से सुन लें। सबसे पहले जो है हमने इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन किया कि इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके साथ ही हमने कॉग्निशन का वर्ड भी यूज किया। इंटेलिजेंस को हमने कह दिया कि जहान, यानी हमारा जो एक्शंस होते हैं, जबकि कॉग्निशन क्या है, हमारी थिंकिंग है, हमारे प्लान्स हैं, कि जो हमने हमारे माइंड सेट होता है, यानी हमारे जहन में हमारे किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो प्लान्स हमने बनाए होते हैं, कि प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, उन पर किस तरह से अमल करना है, उनको किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, वो हमारी इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, ये हमारा कॉग्निशन का और इंटेलिजेंस का डिफरेंस हो गया कि कॉग्निशन क्या है कि हमारी थिंकिंग पावर है, हमारे प्लान्स हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग आंसर्स हैं, और इंटेलिजेंस क्या है कि उन सब प्लान्स को, उन थिंकिंग पावर को हमने किस तरह से अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इम्प्लीमेंट करना है, वो हमारी इंटेलिजेंस हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है, कि इंटेलिजेंस को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। ऑब्वियसली कि इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। सबसे पहले जो है वो इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कुछ स्केल्स होते हैं, या ग्रुप इंटेलिजेंस को अगर मेजर करना है तो उसके कुछ स्केल्स होते हैं। ठीक है, उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं वो दो स्केल हैं, एक स्टैनफोर्ड बिने का स्केल है और दूसरा वेस्लर का स्केल है, ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हमारा आता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, यानी इन लेवल्स पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो उसमें हमने दो स्टेजेस पढ़ी, सॉरी दो थ्योरीज पढ़ी, जिनमें एक पढ़ी प्याजे की थ्योरी, जीन प्याजे की थ्योरी। ठीक है, जो उन्होंने 1920 में दी थी। दूसरी हमने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी। इसके अंदर जो है जीन प्याजे को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया। बिनी ने इंटेलिजेंस को, यानी करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ आइटम जो है, उन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस हमारी ये होती है कि कोई भी किसी चीज का हम करेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस है। या एबिलिटी टू एडजस्ट, अडॉप्ट और डील एफिशिएंटली, यानी किसी भी प्रॉब्लम को हम किस तरह से डील करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं इसमें इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इंटेलिजेंस के अंदर स्कीमास को हमने डिस्कस किया, यानी एक जो बच्चा होता है उसमें ब्लैंक स्लेट होता है ना, यानी टैबला रास्ता, यानी ब्लैंक स्लेट कहा इस चीज को, कि बच्चे का जो जहन होता है, इन्फेंट का जो जहन होता है, वो ब्लैंक स्लेट होती है, यानी टैबला रास्ता, यानी ब्लैंक स्लेट। तो उस पे वो डिफरेंट जो स्कीमास हैं वो बिल्ड करता है, यानी अपने एक्शन या अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से, अपनी ऑब्जर्वेशन से वो उन चीजों को जहन में बिठा लेते हैं। कुछ स्कीमास होते हैं, यानी जहन में चीजों को बिठा लेते हैं। देन वो अपनी इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज करता है कि चीजों को एसिमिलेशन के थ्रू, एकोमोडेशन के थ्रू और इक्विलिब्रियम के थ्रू वो चीजों को डिस्कस करता है, या अपनी चीजों को कॉग्निटिव जो उसकी डेवलपमेंट होती है उसको इनहेंस करता है। अच्छा, जो एसिमिलेशन होती है, इट मीन्स कि infant or individual or participant or sample match her या his learning with previous learning, यानी जो बच्चा है, जैसे हम अगर इन्फेंट की मिसाल देते हैं, तो जो छोटा बच्चा है वो हर चीज को
ट्राइज टू सक, यानी हर चीज को वो चूसने की कोशिश करता है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं उनका दूध का फीडर है, उनका सूदर है, या उनका अंगूठा है, बच्चे चूसते हैं वो। इवन वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मुंह में डालते हैं, अगर कोई सेल फोन पास पड़ा है उसे मुंह में डालेंगे, पेन पास पड़ा है उसे मुंह में डालेंगे। यानी उनकी थिंकिंग नहीं है ना अभी, वो हर चीज को जो है रिएक्ट करते हैं, वो हर चीज को पकड़ के मुंह में डाल देते हैं, उन्हें लगता है कि हर चीज को मुंह में डालते हैं। अच्छा, अब ये है कि बच्चे जो है इन्फेंट जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज पे हर चीज को एसिमिलेट करता है, मैच करता है विद प्रीवियस लर्निंग, कि मैंने फीडर को मुंह में डाला, सूदर को मुंह में डाला, तो वो फिंगर को मुंह में डालेगा चूसने के लिए, वो किसी पेन को, किसी बुक को, हर चीज को मुंह में डालेगा, यानी उसकी लर्निंग हो गई है ना कि हर चीज उसकी। बच्चे अपना माइक ऑफ कर दें, कि हर चीज को उसने मुंह में ही डालना है, ये उसकी एसिमिलेशन है। देन वो जब प्री ऑपरेशनल स्टेज पर आता है तो उसकी या प्री ऑपरेशन या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे जब आता है तो एकोमोडेशन होती है, वो एकोमोडेट करता है चीजों के साथ, यानी अप्लाई न्यू लर्निंग विद एग्जिस्टिंग लर्निंग, यानी उसे इस स्टेज पर इतनी नॉलेज हो जाती है कि उसने किस चीज को मुंह में डालना है और किस को नहीं डालना। यानी वो अब हर चीज को पकड़ के मुंह में नहीं डालेगा, वो सिर्फ जो उसकी चीजें खाने वाली चीजें हैं वो सिर्फ उसको, यानी उसमें थोड़ी सी कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बिल्ड हो गई है, कोग्निशन उसकी इनहेंस हुई है, तो उसने हर चीज को मुंह में नहीं डालना। ये हो गया उसका एकोमोडेशन का स्टेप। देन हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि एडजस्ट एंड मेंटेन रिलेशन बिटवीन हिमसेल्फ एंड इन्वायरमेंट, यानी वो इस चीज को यहाँ पे समझ लेता है, इस बात को समझ लेता है कि किस चीज को उसने अडॉप्ट करना है और किसको नॉलेज का हिस्सा बनाना है। जैसे अगर मैं आप लोगों की मिसाल दूं तो आप लोगों के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, ये आपके एक नॉलेज का हिस्सा है कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करनी है, या किस तरह से हमने अपना नॉलेज जो है वो शेयर करना है, ये आपके नॉलेज का हिस्सा है कि आपने पावर पॉइंट किस तरह से बनानी है। यानी होम पे जाएंगे, सबसे पहले पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आपका नॉलेज है। जब आपने पावर पॉइंट बनानी है तो आप इस चीज को अडॉप्ट करोगे, यानी ले लोगे कि मैंने इस तरह से बनानी है, यानी आपकी कॉग्निशन का हिस्सा बन गया हुआ है ना कि आपने कोई काम किस तरह से करना है। तो ये आपकी कॉग्निशन होगी, यानी इक्विलिब्रियम होता है कि आपको समझ आ गई हुई है कि हमने किस चीज को जो है हमने किस चीज को समझना है, उसे नॉलेज का हिस्सा बनाना है, और किस चीज को एडजस्ट अडॉप्ट करना है हमने। ठीक हो गया जी बच्चे, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।